کہ نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے، نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے۔ زمینیں جب بھی کھودو گے ہم ہی ہر بار نکلیں گے، زمینیں جب بھی کھودو گے ہم ہی ہر بار نکلیں گے۔ وہ خاکی چڑیاں، وہ زعفرانی رنگ کے چہرے، انہیں ڈھونڈو انہی میں ملک خدار نکلیں گے۔ میں اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، قائد ایوان مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب نے ٹھہر کے مقابلہ کرنا بتایا ہے۔ بات ہو رہی ہے آج تمام لیڈروں کو مسلمان کی چوکٹ یاد آ رہی ہے۔ تمام کسی شاعر نے کہا تھا کہ یزید وقت کی اولاد سے نہیں ڈرتے، اگر ہے جنگ تو فولاد سے نہیں ڈرتے۔ یزید وقت کی اولاد سے نہیں ڈرتے، اگر ہے جنگ تو فولاد سے نہیں ڈرتے۔ یہ سر پہ باندھے کفن تیرے جو مقابل ہے، حسین والے ہیں تعداد سے نہیں ڈرتے، حسین والے ہیں تعداد سے نہیں ڈرتے۔ آج ہم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جلانے جو چمن آیا اسے ہم راکھ کر دیں گے، محبت کی زمین کو ان کے نغموں سے بھر دیں گے۔ جلانے جو چمن آیا اسے ہم راکھ کر دیں گے، محبت کی زمین کو ان کے نغموں سے بھر دیں گے۔ جو تم نے خواب دیکھے، اگر ہم اقلیت میں ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ڈر جائیں، اگر ہماری تعداد کم ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ڈر جائیں۔ منظر اتحاد المسلمین میدان عمل میں رہ کر مقابلہ کرنے کی عادت ڈالتی ہے، اور منظر اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، قائد ایوان مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب نے ٹھہر کے مقابلہ کرنا بتایا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار ملت علیہ رحمہ کا ایک جملہ ہمیشہ تقریر میں ہوتا تھا کہ مسلمان کا پیدا ہونا اس کی موت کی علامت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم جس دن پیدا ہو گئے ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے، ہماری موت کہاں آنے والی ہے وہ مقام وہ وقت لکھ چکا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی کوشش کر لو ہم ایک منٹ بھی ہم زیادہ نہیں رہ سکتے اس دنیا میں، اور ہم شہر حیدرآباد میں اگر ہندوستان میں رہیں گے تو متحد اور منظم رہ کے رہنا ہے، ہم کو ہمیشہ مقابلہ کرنا ہے، ہم کو ظالموں سے پنجہ آزمائی کرنا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ آج منظر اتحاد المسلمین کو تمام لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج منظر اتحاد المسلمین کی قیادت کو فرقہ پرست کہا جا رہا ہے۔ اگر بی جے پی کہہ رہے منظر اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست، وشو ہندو پریشد کے سربراہ کہہ رہا ہے منظر اتحاد المسلمین ایک فرقہ پرست ہے، آر ایس ایس کا سربراہ کہہ رہا ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ایک فرقہ پرست ہے۔ اگر جو اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے، سیکولرزم کا علمبردار کہنے والے، مسلمانوں کو مسیح ماں کہنے والے، آج کانگریس کے تمام لوگ منظر اتحاد المسلمین کی قیادت کو فرقہ پرست کہہ رہے ہیں، اور جس کا کوئی وجود نہیں ہے شہر میں، وہ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے الیکشن کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ جس کا شہر میں کوئی وجود نہیں ہے، جو اپنے گھر کی ضمانت نہیں بچا سکا، آج بلند بانگ دعوے کر رہا ہے، آج دواخانے کی بات کر رہا ہے، آج بات کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کی۔ یاد رکھو احمقوں کی دنیا میں رہنے والے، منظر اتحاد المسلمین ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتی ہے، ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتی ہے، چاہے صدر و معتمد کی شکل میں ہو، چاہے شفاعت کی شکل میں ہو، چاہے ایم ایل اے صاحب کی شکل میں ہو، چاہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب شہر حیدرآباد میں رہتے تو آپ کے درمیان میں رہتے۔ آج منظر اتحاد المسلمین کو ہر کونے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے انتخابات ہے، صرف شہر کے انتخابات نہیں ہے، یہ ایک رائے ہموار کی جا رہی ہے کہ منظر اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ایک نیشنل لیڈر بن کے ابھر چکے ہیں، اور ان کی طاقت کو، ان کی آواز کو کس طریقے سے دبانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔
कांग्रेस हो या बासपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, तमाम अपने आप को सेकुलर कहने वाले आज मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत आज इन सबको चुभ रही है। आप अंदाजा लगाइए, पार्लियामेंट में बहस होती है, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी बहस करते हैं तो मजलिस पर तनकीद करते हैं। अगर पार्लियामेंट में मुल्क का मौजूदा वज़ीर आज़म बात करता है तो मजलिस को तनकीद का निशाना बनाता है। अगर अमित शाह बात करता है पार्लियामेंट के अंदर तो कायदे मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये कहकर बनाया जाता है कि मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी जी ने फ़िरक़ा परस्ती की बात कही है। जो लोग हमेशा हमको मारने के मंसूबे का बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जितनी तमाम मिशनरी है पार्लियामेंट के अंदर जो मुसलमानों के दुश्मन है, आज तमाम लोग मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। 500 से ज़्यादा अराकीन पार्लियामेंट में सिर्फ 2 अराकीन पार्लियामेंट, एक हैदराबाद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब है। आप अंदाजा लगाइए, तमाम सेकुलर जितनी जमातें हैं, मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी पसंद नहीं है ये लोग को। इसलिए नहीं है कि मुसलमान हमारे पैरों में बैठना, मुसलमान फुटबॉल की तरह रहना, तुम सिर्फ हमको वोट देना, उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है। बताओ कांग्रेस वालों, बताओ जिसका वजूद नहीं है, तुम कहाँ थे पिछले 4.5 साल से? तुम शहर हैदराबाद की कौन सी गली में आए? आज मुसलमानों का दावा कर रहे हैं कि हम मसीहा है, हमने 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए, कांग्रेस की देन है 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए। तुम बुलंदबान दावे कर रही। ये शब्बीर अली साहब कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिया। अजीब बात हो रही है। आज तमाम लीडरों को मुसलमान की चौकट याद आ रही है, तमाम लोग को मुसलमानों की तरक्की की बात करने की बात हो रही है। आज तमाम जितने लोग आज बात कर रहे हैं 4% तहफ़्फ़ुज़ात की, उनको मालूम होना चाहिए चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, यहाँ आज़म और अजीज का इनकाउंटर हुआ था, यहीं आगे की गली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, पुलिस छावनी बना हुआ था, बैरिस्टर साहब यहाँ पर आके सख्त एहतजाज किए थे। और मैं आपसे कह रहा हूँ 4% की जो बात हो रही है, चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट रहे थे। कर्फ्यू, हमको सुबह उठते कर्फ्यू मिल रहा था, कुछ दुकानों को जलाया जा रहा था, नए पुल से लेके बशीर बाग तक पुलिस की मौजूदगी के अंदर हमारे तमाम दुकानों को आग के शोलों में फूंका गया था। मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उस वक्त के सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अहले रहमा के पास दारुसलाम को उस वक्त का अपोजिशन लीडर राजशेखर रेड्डी साहब दारुसलाम को आते। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी गांधी भवन नहीं गई। तुम जिसको अपनी माँ कहते हैं, तुम जिसको अपनी अम्मा से मुखातिब करते हैं, वो तुम्हारी अम्मा दारुसलाम को आई 1984 में, जिस वक्त भास्कर राव की हुकूमत को मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत थी। दारुसलाम को गांधी भवन उठ के आया था। जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, दारुसलाम पे गांधी भवन उठ के राजशेखर रेड्डी की शक्ल में आया था। वहां पर माहिदा हुआ, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमान ने कहा है कि हमारे को 5% तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए। 4% तहफ़्फ़ुज़ात पे बात खत्म हुई। और जो मसाइल थे, हमारे जो बेगुनाह बच्चे हैं उनको जेल से रिहाई की बात होने वाली थी, और जो मसाइल थे मुसलमानों के डेवलपमेंट के, वो बात दारुसलाम में राजशेखर रेड्डी साहब करते हैं, 4% तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। उसके बाद मुस्लिम मुत्तहिदा मास के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सारे आंध्र प्रदेश का दौरा करते हैं। उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, उस वक्त दौरा करते हैं, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक राय अमल को तैयार करते हैं। मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन 4000 किलोमीटर से ज्यादा दौरा करती है। एक मुसलमानों में, दलितों में मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कायदीन साथ फिरते थे, कांग्रेस के लिए एक राह हमवार किए थे। उसके बाद इलेक्शन होता है, कांग्रेस बरसर इख्तिदार आती है, 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाता है। तो मुसलमानों की बात करने वालों, क्या बताओ तुमको, क्या थे? क्या कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटक में नहीं थी उस वक्त, जहाँ आंध्र प्रदेश में तुम 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए? महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत, केरला में कांग्रेस की हुकूमत, राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत, कमोबेश 18 रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत थी।
मगर क्या वजह है आखिर? 4% तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलता है तो पता चलता है यहाँ एक क़ियादत है, यहाँ एक ताकत है, मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक ताकत है जो आज 4% तहफ़्फ़ुज़ात देने पे मजबूर है। कांग्रेस वाले, तुम अपनी खुदी से नहीं दिए, तुमने कोई भीख नहीं दी, हमने मेहनत करके कांग्रेस की हुकूमत को यहाँ लेकर आया। चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत का खात्मा मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत ने की है। आज बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िरक़ा परस्त है। अगर हम फ़िरक़ा परस्त होते तो 1986 में प्रकाश राव को मेयर नहीं बनाते, पी सत्यनारायण को मेयर नहीं बनाते, आलमपल्ली पोचैया को मेयर नहीं बनाते। आज बातें कर रहे हैं कि जो लोग कर्नाटक में हुकूमत चल रही है, कर्नाटक में कुछ मुसलमानों के लिए ऐलानात नहीं हुए मगर यहाँ के ऐलानात की बौछार कर रहे हैं। वहाँ का मिनिस्टर आके यहाँ इलेक्शन में बात कर रहा है, कांग्रेस का सदर हैदराबाद में आके बात कर रहा है, कांग्रेस का मुल्क के वज़ीर आज़म का दावेदार वो यहाँ के मुसलमानों के लिए ऐलानात कर रहा है। आज इमाम को 12,000 देने की बात की जा रही है, मौज़न को 10,000 देने की बात की जा रही है। क्या वजह है? तुमको कर्नाटक में कौन रोक रहा है? कर्नाटक में किसने रोका है तुमको? वहाँ ऐलान कर दो कि 12,000 इमाम को देंगे, 10,000 मौज़न को देंगे। आप गूगल पे सर्च करिए, कर्नाटक के अंदर 3,100 रुपये, सिर्फ 3,100 रुपये अभी दिए नहीं। तजवीज़ आई है मिनिस्ट्री से 3,100 इमाम के लिए, 2,500 मौज़न के लिए। ये तजवीज़ आई, अभी नहीं दे रहे हैं। यहाँ तेलंगाना में मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है, 5,000 रुपये दिया जा रहा है। और इलेक्शन के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह अज़ीम इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो मैं आप तमाम से इल्तिमास कर रहा हूँ कि मेरे भाई, इलेक्शन का मौसम है, तमाम लोग निकल के मैदान में आते हैं, वोट की भीख मांगते हैं। बहुत लोग के तरीके अलग है मगर जो लोग अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, जो शख्स उम्र के ये हिस्से में है, मेरे को अफसोस इस बात का है कि तू क्या बोल रहा, आखिर क्या बात कर रहा? वोट मांगने का सबको हक है, इलेक्शन लड़ने का सबको हक है, ये जमहूरी मुल्क है, मगर तुमको तनकीद करना है मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तो तनकीद करना चाहिए। अगर कहीं नागानी हालत हो रही है, अगर कोई कोताही हो रही है, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर होना चाहिए। मगर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, घरों के ख़वातीन परेशान है कि क्या बोल रहे हैं। आखिर जिस एरिया में जलसा कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में इतने आगे चले गए कि लौट के आने का कोई रास्ता नहीं रखे। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ कि शहर याकूतपुरे में एक एक कोर्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। उन जालिम ताकतों को बताना चाहिए कि मंज़र इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ काम करके बताती है। आप अंदाजा लगाइए, लॉकडाउन में सारी दुनिया थम गई थी, कौन थे आपके दरमियान में? कौन थे? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रोज निकल रहे थे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब रोज निकल के अवाम के दरमियान में राशन किट्स तकसीम किया जा रहा था। अहमद पाशा खादरी साहब निकल के अवाम के दरमियान में रहते थे, रोज बिलान आगा सुबह से शाम तक याकूतपुरे की गलियों की खाक छानते थे। अहमद पाशा खादरी साहब, जितने कारपेंटर्स है, शफात साहब यहाँ पर मौजूद है, शफात साहब अपने हल्के में फिरते थे। कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन में तो बहुत सारे लोग आएंगे, फिर इलेक्शन के पास खूफा में चले जाएंगे। ये लोग का मकसद है, ये उनका सीजन है। जितनी हमको ज्यादा से ज्यादा तनकीद करेंगे, पैसा उतना मिलेगा, पैसा उतना मिलेगा इनको। इनका धंधा, इनका कारोबार इलेक्शन टू इलेक्शन है। आप अंदाजा लगाइए, 4.5 साल तक कहीं नजर नहीं आते। जैसा इलेक्शन आने वाला है निकल जाते हैं और बुलंद बांग दावे करते हैं क्योंकि इनके आबो अजदाद सिखा के गए हैं। झूठ बोलो, इल्जाम तराशी इनको विरसे में मिली है। अगर कोई खानदान का बड़ा अगर इस दुनिया फानी से चले जाता है तो उसको विरासत में जो बचा है उसको मिलता है, और जिसका वजूद नहीं है शहर हैदराबाद में, वो खानदान, वो कबीले का एक बड़ा शख्स दुनिया फानी से चले गया, उसके विरसे में झूठ मिली है। ये झूठ को बांट चुके हैं ये लोग। वो शख्स भी
الزام تراشی کرتے کرتے جھوٹ بولتے بولتے دنیا سے چلے گیا، اور یہ لوگ بھی نکلے ہیں صرف جھوٹ 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 بول رہے ہیں، اتنا جھوٹ بول رہے ہیں منظر اتحاد المسلمین کے خلاف صرف جھوٹ بولنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کا جھوٹ جھوٹ چل رہا ہے۔ تو میں آپ تمام سے التماس کرتا ہوں 30 تاریخ کے دن اپنے کے کوٹ کا استعمال کر کے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ کو اور ان کی قیادت کو مضبوط کریے، جعفر حسین معراج صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریے۔ میں ایک شعر کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں کہ نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے، نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے، زمینیں جب بھی کھودو گے ہم ہی ہر بار نکلیں گے، زمینیں جب بھی کھودو گے ہم ہی ہر بار نکلیں گے، وہ خاکی چڑیاں وہ زعفرانی رنگ کے چہرے انہیں ڈھونڈو انہی میں ملک خدار نکلیں گے۔ میں آپ تمام سے 30 تاریخ کی اپیل کرتا ہوں، اولین ساتوں میں نکلیے، بعد فجر نکل کے اپنے کے کوٹ کا استعمال کیجئے۔ مسلمانوں کے پاس اگر ہندوستان میں اور ہندوستان کی جمہوریت میں اگر کوئی طاقت ہے وہ ایک کوٹ ہے، جو طاقت کے ذریعے ہم ہمارے نمائندوں کو بھیج کے ہمارے مسائل ہماری بات ایوان میں رکھ سکتے ہیں۔ پتنگ کو اڑ دیجئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔